بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اشمل جامی، اور اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سرکار بات کر رہی ہے عمران خان صاحب کے ٹرائل کے حوالے سے کہ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ کچھ وزراء کی رائے بالکل ہونی چاہیے، گنجائش موجود ہے، اس پہ غور ہو سکتا ہے۔ کچھ اس بارے میں ابہام کا شکار ہیں۔ یہ معاملہ ہے کیا ٹرائل ان کا آرمی ایکٹ کے تحت ہونا چاہیے یا نہیں؟ قانون اور آئین اور صورتحال، حالات و واقعات کیا بتلاتے ہیں؟ اس پہ تفصیل سے آج بات کریں گے، شامی صاحب کی رائے بھی شامل کریں گے۔ اور آڈیو لیکس کمیشن تھا، روک دیا کام کرنے سے۔ آج حکومت نے چیف جسٹس سمیت 3 ججز جو اس کیس کو سن رہے تھے ان پر اعتراض کر دیا کہ وہ بینچ سے علیحدہ ہو جائیں اور نیا بینچ تشکیل دینے کی استدعا کی ہے۔ اس بارے میں آج خواجہ آصف نے آن دی فلور آف دی ہاؤس بھی اظہار خیال کیا۔ کیا کہا وہ بھی سنائیں گے آپ کو۔ پھر نیا قانون جو تھا، کل اس پر گفتگو ہوئی۔ نواز شریف صاحب کو جہانگیر ترین کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں، ابہام ہے۔ شامی صاحب کی ایک اس پر رائے ہے، وہ آج آپ پروگرام میں سن سکیں گے۔ آج طیب اردوان صاحب، کل آپ کو پتہ ہے ترکیہ میں الیکشن جیتے، اس کے بعد جو انہوں نے تقریر کی نوجوانوں کے نام، وہ سنانی ہے آپ کو، دکھانی ہے، اور پھر یہ موازنہ کرنا ہے کہ ہمارے رہنما نوجوانوں کو کیسا پیغام دیتے ہیں یا نہیں۔ عمران خان صاحب کی آج جو 9 مئی کے واقعات کے ہنگام جے آئی ٹی بنی تھی پنجاب میں، اس کے ہاں پیشی تھی، پیش وہ نہیں ہوئے، انکار کیا انہوں نے۔ البتہ تحریری جواب بھیجا ہے۔ لیگل ٹیم نے ملنے کی کوشش کی، جے آئی ٹی نے کہا لیگل ٹیم ملنے کی مجاز نہیں۔ اور ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وزیراعظم کا بیان تھا کہ انتشار پسند اور جلاؤ گھراؤ کرنے والے مذاکرات کے اہل نہیں، دوسری جانب عمران خان صاحب مذاکراتی کمیٹی بناتے ہیں، تو یوں لگتا ہے جیسے مذاکرات کی باتیں اب خواب ہو رہی ہیں۔ اور اہم خبر ایک یہ بھی کہ سابق صدر آصف علی زرداری لاہور پہنچ چکے ہیں۔ اس سے جڑی کچھ اندر کی خبریں پروگرام میں ہی آج شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ شامی صاحب، سب سے پہلے جو پہلا موضوع تھا نا، اس پہ آپ کی طرف آنے سے پہلے ذرا دیکھیے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات، اس کے بعد سرکار کی حکمت عملی کو دیکھیں تو پھر آرمی ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب کے ٹرائل کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا حکومت سوچ رکھتی ہے؟ ذرا دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب کیا فرما رہے تھے کل کامران شاہ صاحب کے ہاں۔ کیٹاگوریکلی ایک بات بتائیں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل بنتا ہے؟ میری سوچ کے مطابق تو بنتا ہے، ملٹری ٹرائل عمران خان کا؟ لیکن فیصلہ اس کا جو ہے وہ ملٹری ٹیم نے کرنا ہے۔ عمران خان صاحب اگلے الیکشن سے پہلے گرفتار ہوں گے؟ اسسمنٹ تو یہ ہے کہ وہ گرفتار ہوں گے۔ الیکشن سے پہلے ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں؟ گرفتاری کے بعد اگر سزا ہوتی ہے تو ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، ورنہ وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اور پھر اسی معاملے پر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی مخاطب ہوئے ایک پروگرام میں۔ وہ کیا فرما رہے تھے ذرا، یہ ہے حکومت کی سوچ۔ اب شامی صاحب اس پہ کیا فرماتے ہیں، اس سے پہلے آپ کی اطلاع کے لیے کہ ماہر قانون اور نامور صحافی تجزیہ کار جناب منیف فاروق صاحب بھی ہماری ہاں شامل گفتگو ہیں۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذرا گفتگو پہلے سنیے۔ شامی صاحب، جب حکومتی اہم وزراء کے ہاں سے یہ بیانات کے ان کی سوچ کے مطابق بنتا ہے، خارج از امکان نہیں ہے، تو اس سے تو یہ بھنک پڑتی ہے کہ کچھ سوچا جا رہا ہے۔ سوچا تو جا رہا ہے۔ اچھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض وزراء یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو جائے اور عمران خان صاحب کو بھی آرمی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا جائے، لیکن میرے خیال اس پہ کوئی کنسنسس نہیں ہے۔ درست۔ ابھی تو آپ دیکھیں نا کہ جو عام جو لوگ ہیں جو اس میں ملوث پائے گئے ہیں، ان کے بارے میں بھی معاشرے میں بحث جاری ہے اور رد عمل بھی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ملٹری ایکٹ کے تحت ہونی چاہیے، آرمی ایکٹ کے تحت ہونی چاہیے یا نہیں۔ اگرچہ کہ بعض لوگ جو ہیں ان کو عدالت نے آرمی کی تحویل میں دے دیا ہے، پہلے 16 کے افراد تھے، اب کل بھی 8 مزید افراد حوالے کیے گئے ہیں، اور تو اس کے حق میں ایک مضبوط قانونی دلائل بھی موجود ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے دور میں بھی کوئی 25-26 لوگ جو ہیں سویلینز، ان کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت کیا گیا صحیح فوجی عدالتوں میں۔ تو اس لیے ایک رائے تو یہ ہے کہ جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے اور وہاں بدتمیزی کی ہے، دہشت گردی کی ہے، ان کے خلاف فوجی عدالتوں میں کارروائی ہونے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ صحیح۔ اس کے باوجود قانون دانوں کا اور سول سوسائٹی کے اور سیاسی جماعتوں کے ایک بڑا حصہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ سول عدالتوں میں ہی مقدمے چلنے چاہیے اور ان سول عدالتوں میں اور یہ اہلیت موجود ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو سزا دے سکیں۔ ٹھیک۔
ابھی تو اس بات پر ایک کنفیوژن موجود ہے، اس کے باوجود کہ بعض افراد اس کام کے لیے یعنی مختص کر دیے گئے ہیں، نومینیٹ کر دیے گئے ہیں، اور ان پر فوجی عدالت میں ہی مقدمے چلیں گے۔ تو عمران خان صاحب دیکھیں، ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ 9 مئی کو آزاد نہیں تھے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ جیل میں تھے، قید تھے، اور اس لیے ایک بڑی کمزوری تو یہ واقع ہوتی ہے، یعنی وہ خود فزیکلی کسی ایسے ایونٹ کا حصہ نہیں تھے۔ ٹھیک ہے نا، ایک وہ جیل میں تھے، اور دوسرا یہ کہ اگر جیل سے باہر ہوتے تب بھی اگر یا تو وہ اس کا حصہ ہوتے تو نا، بات تھی نا کہ اس حملہ آور جو لوگ تھے ان کو لیڈ کر رہے ہوتے، تو پھر ایک مجموعی طور پر ایک رائے عامہ ان کے خلاف ہو جاتی، اور اگر آپ ملٹری کورٹ کا فیصلہ کرتے کہ ان کو وہاں پیش کرنا ہے تو اس کی کوئی مؤثر مخالفت نہ ہوتی۔ اب تو صرف معاونت کا پہلو کہیں سے ڈھونڈا جا رہا اب آپ دیکھیں، معاونت کا جو پہلو ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے۔ ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہے نا، جی 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 بالکل۔ ان کو جو پھانسی کی سزا دی گئی وہ بھی معاونت کے جرم میں دی گئی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے قتل نہیں کیا، گولی نہیں چلائی۔ جب نواب محمد احمد خان کے قتل کا مقدمہ چلا تو یہ کہا گیا، پھر جو ان کے ڈائریکٹر جنرل تھے ایف ایس ایف کے، جو وعدہ معاف گواہ بنے، بالکل اپروور، اور اپروور بن گئے، جو پولیس والے جو حملہ آور تھے انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے حملہ کیا ہے، تو اب نشاندہی ہوئی ذوالفقار علی بھٹو کی کہ وزیر اعظم نے اس میں اپنے جو کمانڈر ہیں ایف ایس ایف کے، ان کو حکم دیا کہ اس بندے کو قتل کر دیا جائے۔ تو گویا وزیر اعظم نے سازش کی، لیکن اس پر پھانسی کی سزا ان کو دے دی گئی، اور اس وقت یہ موقف تھا کہ اگر ایک شخص وزیر اعظم ہو کر کسی کے خلاف سازش میں ملوث ہوتا ہے اس کو تو سخت سزا دینی چاہیے، لیکن قانون میں جو شخص بیٹر ہے، جو سازش کرنے والا ہے، جو معاون ہے، اس کو آج تک پھانسی کی سزا نہیں نہیں ہوئی، بالکل ٹھیک۔ تو پھر اس کے بعد یہ جو مقدمہ ہے اس کو جوڈیشل مرڈر کہا جانے لگا، بالکل اس کے فیصلے، بالکل ابھی تک۔ ٹھیک ہے نا۔ تو ابیٹر جو ہے، آپ نے ایک وعدہ معاف گواہ کے ذریعے سے اور کچھ سرکمسٹینشل ایویڈنس کے ذریعے سے صحیح، آپ نے اس بندے کو مرکزی ملزم قرار دے دیا۔ اب خان صاحب جو ہے، آپ ایک ذوالفقار علی بھٹو دوسرا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ تو جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی ہفتے کو، تو اسی واقعات اور اسی صورتحال کے ہنگام جو ان کی رائے تھی وہ یہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ اسی تناظر میں بھٹو 2 بھی بنایا جا سکتا ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ نہیں، میرا مطلب دیکھیں، تو اب بھٹو پر تو مقدمہ چلا سول عدالت میں، جی ہاں، یہاں آپ بات کر رہے ہیں۔ اگرچہ مارشاء اللہ تھا، لیکن یہاں مارشاء اللہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک کو ملٹری کورٹ کے سپرد کر دیں، تو یہ تو ایک بڑی ایک ایسا عجب بات، بڑا سیاست دان جو ہے نا، وہ کھڑا ہو جائے گا فوج کے ساتھ، فوج کے مقابل۔ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فوج ہے اس پر بڑا دباؤ آئے گا، اور اس کے بڑے منفی اثرات پڑیں گے۔ اور تو اور جو ود ان دی گورنمنٹ جو الائز ہیں، اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی وہ تو پھر بالخصوص بات کی بات ہے نا، ان کے ہاں بھی یہ سوچ نہیں پائی جاتی، جب وہ اس کی نفی کرتے وہ ہیں۔ تو بات کی بات تک فیصلہ ہوگا۔ اب اگر وہاں آپ یہ دیکھیے کہ فوج کے مفاد کا تقاضا ہے کہ وہ اس میں خان صاحب کے معاملے میں وہ الگ رہے، اور جو اگر ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے تو وہ سول عدالت میں پیش کی جائے، ہاں، حکومت جانے، سول عدالت جانے، اور حکومت وہ جانے، بالکل سول عدالت جانے، فوج اس میں فریق نہ بنے۔ ٹھیک۔ منیب یہ صاحب ایک- سن رہے ہیں ایک گفتگو؟ وسیع تر مفاد یہ ہے۔ بالکل اب ٹھیک ایک- بات۔ میں اب منیب صاحب سے میں بات کرتا ہوں، اب بڑی دلچسپ بات۔ جی۔ اب کئی ہمارے دوست مجھ سے بحث کرتے ہیں اس کس مسئلے بابت؟ آ کے۔ وہ کہتے ہیں اسامہ بن لادن تو افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا، ہاں،
9/11 में उसको मरकजी मुल्ज़िम कैसे करार दे दिया गया और अमेरिका ने पूरे अफगानिस्तान को तहत कर डाला। तो उसामा, इसलिए आप जब ये कहते हैं कि मौके पर कोई शख्स मौजूद होता तो बात होती, तो उसमें तो वजन नहीं है। तो फिर मैं उनसे कहता हूं कि भाई ये बात आपका कलेजा ठंडा तो कर सकती है, लेकिन हमारे हालात से मुताबिकत नहीं रखती। ठीक, ना यहाँ कोई अमेरिका है, बिल्कुल ठीक। ना ये यहाँ टू डिफरेंट उसामा बिन पैरेलल्स है लादेन ना, है। उनकी टू डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस भी थे, हाँ, हम अपने टू डिफरेंट सिनेरियोज भी थे, हम अपने मुल्क में हाँ, अपने मामला और डायनामिक्स टोटली डिफरेंट है। शामी साहब दुरुस्त आपने फरमाया, इसलिए जी, सियाक और सबाक जो है ना, उसको गलत मलत नहीं। उसको खल्त मल्त ना करे। ठीक, अच्छा जी, मुनीब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शामी साहब ने तारीखी हवाला दे के और जो कानूनी आइनी उसमें नज़ीर निकलती है वो भी बता दी, क्योंकि बज़ाहिर ना वो ख़ुद इसको लीड कर रहे थे ऐसे किसी मॉब को, ना वो किसी हमले में मुलव्वस थे और ख़ुद भी कस्टडी में थे, तो लिहाजा वो महज एक मुआवनत की नाम की शायद निकलती है, जो शामी साहब बयान भी कर चुके भुट्टो साहब का हवाला है। हाँ जी, आप ये बताएं राना साहब की सोच फिर कैसे बनती है कि जी होना चाहिए, और ख्वाजा साहब कैसे कहते हैं जी खारिज इम्कान नहीं। इनके यहाँ अगर ये सोच पाई जाती है तो उसकी वजह क्या है आपके नज़दीक, आपके तबसरे के नज़दीक? बहुत शुक्रिया जनाब जामी साहब, और मेरा आदाब जनाब शामी साहब को। मेरा ऑडियो फिक्स करा दीजिए क्योंकि मुझे एको आ रहा है। नहीं, आपको हम सही सुन पा रहे हैं और नाज़रीन भी आपको सही सुन पा रहे हैं, आप जारी रखें अपने तबसरा। अच्छा, उसमें जो मेरा इस्तदलाल है वो सिर्फ ये है, एक तो जो शामी साहब ने अभी मिसाल दी जो उनसे किसी ने गुफ्तगू की उसामा बिन लादेन की, और ये बात शामी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी का कलेजा तो ये बात ठंडा कर सकती है, लेकिन आप ये ज़हन में रखिए कि इमरान खान करोड़ों वोट हासिल करके मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म, वो एक सियासतदान है, वो कोई इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड दहशतगर्द नहीं है, जबकि उसामा बिन लादेन था। वो कोई दुनिया में अमन के पैगाम नहीं बांटता फिर रहा था। लिहाजा मैं तो खुद ताज्जुब में हूँ कि जो लोग ऐसी सोच रखते हैं कि उसामा बिन लादेन दहशतगर्द था, तो उसको कैसे वो एक मौके पे नहीं था लेकिन उसको फिर भी क्यों कहा जाता है कि उसको सजा दे दी है, जो भी कुछ है। सवाल सिर्फ इतना है यहाँ जामी साहब कि इमरान खान साहब का जो प्रॉक्सिमिटी है, प्रॉक्सिमिटी हम कहते हैं ताल्लुक, किसी कितना करीब होना किसी वाक़े से, वो तो यकीनी तौर पर नहीं बनती। और ये बड़ा बुनियादी नुक्ता है जो इसका जिक्र शामी साहब ने भी किया कि वो बाकायदा तौर पर उस वक्त कैद में थे और मौजूद नहीं थे। लेकिन आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगाइए कि इमरान खान साहब ने उस दिन खुद किसी को नहीं कहा कि आप जाइए और जाकर आग लगा दीजिए या कंटोनमेंट में नहीं कहा कुछ ऐसा। हाँ, खुद उनका कोई ऑडियो आया हो, कोई ऐसी चीज आई हो, वो नहीं आई। हाँ, अगर जो प्लानिंग जिसका जिक्र जनाब राना सनाउल्लाह साहब हमेशा फरमाते हैं या ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं, अगर तो उसका कोई उसके शवाहिद, उसका एविडेंस है, तो फिर तो बिल्कुल बात दुरुस्त है। इमरान खान साहब को चले डायरेक्टली नहीं, लेकिन क्योंकि उनकी एक प्रॉक्सिमिटी बढ़ जाती है एक एक्ट से, तो चले उन्हें आप आनत में डाल दें कि या प्रोवोकेशन में डाल दें कि उनको प्रोवोक किया लोगों तो को। ये अगर मेयरली मुनीब साहब ये सिर्फ प्रॉक्सिमिटी बनती है, एयानत बनती है, तो उसको तो आप मिलिट्री में या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में नहीं ट्रायल कर सकते थे। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए अब यहाँ पर जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट है 1952 का, उसके अंदर आप उसका सेक्शन 2 है गालिबन डबल-डी, अगर आप उसका मुताला करें तो वो तंसीबात को नुकसान पहुंचाने से मुतालिक है, फौजी तंसीबात को। अब इमरान खान साहब खुद वहां पर हथौड़ा लेकर या खुद वहां पर डंडे लेकर तो नहीं पहुंचे थे, सही। एलिजिडली उन्होंने लोगों को प्रोवोक किया या प्लानिंग की हुई थी ऑलरेडी। ये बात जरूर है कि इमरान खान साहब वहां पर नहीं थे, उनका जो प्रेजेंस है वो उस मौके पर नहीं थी। लेकिन अगर मैं दोबारा अर्ज करूंगा, अगर ये बात साबित हो पाई कि इमरान खान साहब ने लोगों को प्रोवोक किया या एक प्लानिंग की हुई थी जिसके तहत ये बात साबित शुदा है कि लोगों ने वहां पर जाना था और लोगों ने वहां पर तोड़ फोड़ करनी थी अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हो, तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब को एक अगर हम बड़ी लिबरल किस्म की तशरीह करें पाकिस्तान आर्मी एक्ट की, तो आनत के अंदर, क्योंकि वहां पर आनत का जिक्र नहीं है, लेकिन चले आप आनत के अंदर ले भी आए तो दूसरी तो ठीक है, आपने पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर उन्हें धर लिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट पाकिस्तान से मुल्क के बाहर का बिल्कुल कानून नहीं है, मुल्क के अंदर एक स्टैट्यूटरी लॉ है और हमेशा से मौजूद है, 1952 में इनेक्ट किया गया। बट सवाल ये पैदा होता है कि इसके बारे में तासुर वही है जो शामी साहब ने बताया है, जो आपने बयान किया है
के रद्द अमल भी है, और इससे समहाउ एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम कहा जाता है। इसके अंदर जो इख्तियार है पहली फर्स्ट अपील का, वो भी एक गालिबन एक रिव्यू बोर्ड टाइप होता है, उसके पास जाता है, और जो प्रोसेस है वहां पर भी कहा जाता है कि वो समरी ट्रायल है। वहां कोई इतनी लंबी कोई ये नहीं है कि लंबी बहस हो या लंबी कोई दलाइल दिए जाए। मैं कहता हूं लंबा ट्रायल भी हो, लेकिन फौज को आप क्यों मुकाबले में खड़ा करना चाहते हैं एक बड़ी सियासी जमात के और उसके रहनुमा के? असल में ये बड़ा अहम सवाल है, बिल्कुल, जिसके बड़े मनफी असरात पड़ेंगे हमारे मुस्तकबिल पर। सर डेफिनेटली कॉन्सिक्वेंसेज इसके होंगे। शामिर साहब, गुजारिश ये है कि मैं अगर ये अर्ज कर पाऊं बहुत एहतराम के साथ कि इमरान खान साहब खड़े तो बहुत देर से हो गए थे फौज के सामने। हाँ, इस पैराहे में जो आप फरमा रहे हैं, हाँ ठीक है बिल्कुल, कि किसी भी इतने बड़े सियासी लीडर को फौज के सामने अगर आप खड़ा करेंगे तो वो एक तासुर बड़ा गलत जाएगा कि खुदा न खास्ता फौज किसी शख्स को, सियासी रहनुमा को दबाना चाहती है या उसकी सियासी जो जिंदगी है उसको खत्म करना चाहती है। लेकिन जो कुछ 9 मई को हुआ वो भी ऐसा ही था, जो शायद मैं या जामी साहब तो शायद उसको हम फोर्सी नहीं कर पाते, शायद आप क्योंकि तारीख बेहतर समझते हैं, शायद आपको अंदाजा होगा कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि इसके बारे में तासुर दुरुस्त नहीं है। ये एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम के तौर पर भी जाना जाता है, या इसको इसकी ये बदनाम इस हवाले से है, इसका कोई अच्छा नाम नहीं है। लेकिन इस वक्त जो राय आमा है उसको आप साइड पर भी रख दें, जो आपको एक सीमलेस किस्म का एक गुस्सा नजर आएगा, जो इस वक्त इज़्तिराब नजर आएगा मुतल्लिका हलकों के अंदर, वो देखने से ताल्लुक रखता है। उसमें इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है उसके ऊपर कि जीरो टॉलरेंस, नो डिबेट, नो निगोशिएशन, नो रिप्रीव एंड नो एक्सक्यूज। ये लफ्ज मैंने जानबूझकर इस्तेमाल किए हैं, इसलिए क्योंकि ये वो अल्फाज हैं जिनसे हमें या जिनसे हमें पता चल सकता है, कॉन्टेक्स्ट समझ आ सकता है कि इस वक्त मुल्क के अंदर हालात क्या है। इमरान खान साहब की जो उनका जो तर्ज अमल था, ये एक दिन में तो शामी साहब आप बिल्कुल ठीक बात है मेरे मुनीब साहब, देखें आप तो अव्वलीन लोगों में से थे जिन्होंने जिना हाउस को जाके कवर किया। मैं तो आज भी आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के जो एग्जेक्टिव के अरकान पूरे मुल्क से इकट्ठे हुए और आज हम पहुंचे वहां। आज हमने वो देखा अपनी आंखों से किस तरह बर्बादी हुई है, किस तरह ताराज किया गया, उसको दिल खून के आंसू रोया। हर शख्स, पूरे मुल्क से आने वाले तमाम जो मीडिया और यानी ओनर्स थे, वो नमनाक थी उनकी आंखें और दिल कट गया और फट गया। लेकिन इस सब के बावजूद मैं आपसे एक बात और अर्ज करूं, शेख मुजीबुर रहमान जिनके सियासत के नतीजे में मशरकी पाकिस्तान दो लख्त हुआ, जब आपने फौजी कार्रवाई के दौरान उनको गिरफ्तार करके यहाँ आज के पाकिस्तान में ले आए, उनको कैद कर दिया गया पंजाब में, शायद फैसलाबाद में। उनका मुकदमा जो है वो भी फौजी अदालत में नहीं चलाया गया जी, वो उसके लिए भी एक खसूसी ट्रिब्यूनल कायम किया वो ट्रिब्यूनल जो था वो जेल के अंदर नहीं, यानी हाँ जेल के अंदर, वो और बात है ना आप, यानी असल वो फौजी ट्रिब्यूनल नहीं था, फौजी नहीं था वो। उनके खिलाफ जो शदीद तरीन इल्जामात थे, लेकिन AK बरोही जो है उनके वकील थे जी, और उसके बाद वो सिविल अदालत थी या ट्रिब्यूनल था जिसमें उनका मुकदमा पेश किया जा रहा था। और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उन्होंने जब नैब के लीडर्स के खिलाफ कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार किया, उनको हैदराबाद में बंद किया, उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा था वो भी बगावत का था, गद्दारी का था, और वो चल रहा था सिविल ट्रिब्यूनल में। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज जो थे उसके सरबराह थे ट्रिब्यूनल के, वो भी मिलिट्री कोर्ट नहीं थी। इसलिए हमारी जो तारीख बताती है, हमारी सिविल अदालतें क्या इस काबिल नहीं रह गई कि मुल्ज़मों के डील कर सकें और जो कभी जराइम है उनकी सजा दे सके? मुनीब साहब देखिए,
देखिए जानी साहब, ये शामी साहब, ये तो बात आपकी दुरुस्त है, इस पे कोई आर्गुमेंट तो है नहीं। हमारे मुल्क में जो सरकारी तनसीबात है या उनको नुकसान पहुंचाने के हवाले से पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर भी दफात मौजूद हैं, प्रोसिक्यूट भी लोगों को किया जा सकता है, मंतकी अंजाम के तहत भी पहुंचाया जा सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के अंदर भी दफात ऐसी हैं जिनको इस्तेमाल करके लोगों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन मैं कोई बात ऐसी करूंगा जो कि शायद कुछ हमारे जो दोस्त हैं उनको तल्ख लगे। मसला ये है कि शामी साहब, रियासत तो बहुत पहले वैंडलाइज हो गई थी। रियासत तो आपको याद होगा, मुस्लिम लीग नून के लोगों ने जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, जिस तरह भी वो हुआ, वहां से भी आप सिलसिला शुरू कीजिए तो वहां पर भी रियासत की एक इमारत को पामाल किया गया। फिर 2014 के अंदर इमरान खान साहब के वो धरने के अंदर आपको याद होगा ISPR की स्टेटमेंट आई कि ये तमाम इदारे रियासत की अलामत है। बिल्कुल है, लेकिन जब उनको पामाल किया जा रहा था तो रियासत ने उस वक्त क्या किया? आज हमारे जो भाई हैं जो पाकिस्तान की फौज के अंदर हैं, डेकोरेटेड अफसरान हैं, आज उनके दुख में मैं आप जामी साहब हम बराबर के शरीक हैं, क्योंकि रियासत के इदारे वैंडलाइज हुए हैं। वो हमारा दुख है, वो हमारे इदारे हैं और हमारा। ये आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अब जाते जाते वक्त की कमी है, ये बताएं, ये तो हो गया एक नुक्ता खान साहब के हवाले से और आप दोनों की राय से नाज़रीन तक पहुंच चुकी। इसके अलावा क्या जो जमात है, सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस पर भी पाबंदी की कोई राह निकालने की कोशिश कर रही है सरकार? गुंजाइश बनती है 9 मई के वाक़यात के हंगाम? देखिए, दो तरीके हैं कानून के अंदर जामी साहब जिनको इस्तेमाल करके किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाई जा सकती है, जो कि मुरवजा कानून है। जी फरमाइए। पहली तो बात यह है कि मैं वो इख्तिसार से बता दूं, मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूं कि किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगे, और ना ये हल, मैं आपको कानूनी ना ये उसका हल है। लेकिन चले, एक इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत है 11 और एक पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत है जी, और एक पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज का जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है 2002 का, उसके तहत गालिबन सेक्शन 24। क्या वो दोनों लॉज जो है अट्रैक्ट होते हैं सिनेरियो में पोस्ट 9 में? जी, जो खतरनाक बात है वो ये कि जो 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है उसके अंदर तो मामला हुकूमत के हाथ में है। हुकूमत ने एक गजेट नोटिफिकेशन इशू करना है। अगर हुकूमत की एस्टिमेशन में अगर कोई जमात गलत काम और अगेंस्ट द सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान उसने काम किया है तो वो एक रेफरेंस बना के भेजेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट उसे वेट कर देता है, अप्रूव कर देता है, होल्ड करता है, तो फिर वो जमात तहलील हो जाएगी। जबकि जो दूसरा तरीका है वो फिर इंसदाद बहुत शुक्रिया आपका मुनीर फारूक साहब। देखें, ये एक दो अलग मौजूआत हैं। हाँ जी, एक है इमरान खान साहब पर मुकदमा चलना मिलिट्री कोर्ट, बिल्कुल ठीक, और दूसरा है सियासी जमात को बैन करना। इस पर हम बाद में किसी वक्त गुफ्तगू करेंगे। इसको ये दो अलग मौजूआत है, लेकिन मैं कौम के वसीतर मुफाद में, ये स्टेटमेंट दीजिए आप, फौज के वसीतर मुफाद में, सियासत के और रियासत के वसीतर मुफाद में ये समझता हूं कि ये गुनाह कबीरा होगा, नहीं करना चाहिए, इसका इर्तकाब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त आपसे, कांट एग्री मोर सर। कोई अल्जाम है, शवाहद है, मवाद है, तो आप बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ ले आए, कोर्ट अपनी सिविल अदालत में पेश करें और खान साहब अपना मुकदमा लड़ें और सुरखरू हों या सजा पाएं। ये बात की बात है। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। खान साहब भी मुखातिब थे अपनी पार्टी से, कहते हैं कनपट्टी पर बंदूक रखकर पार्टी छुड़वाने से कभी को पार्टी ख़त्म नहीं होती, पार्टी तब ख़त्म होती है जब नज़रिया ख़त्म हो। आज JIT में पेश होना था, इनकार किया। फिर ऑडियो लीक्स का मामला भी है, उस पर हुकूमत ने सदा की है कि जनाब चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस जो हैं जो सुन रहे हैं वो इस बेंच से अलहदा हूँ। इस सब पे आने से पहले जिक्र किया था हमने तैयब उर्दवान साहब का, जो एक बार फिर तुर्किया के सदर मुंतखब हुए हैं, दूसरे राउंड में गई पोलिंग। मुंतखब होने के बाद जब वो अपनी पार्टी के चाहने वालों से, वर्कर्स से, नौजवानों से बिलखुसूस मुखातिब थे, तो उन्होंने जीतने के बाद, फ़तह हासिल करने के बाद क्या नसीहत की आपने नौजवानों को, ये ज़रा देखिए, ताकि फिर मैं शामी साहब से पूछ सकूं कि हमारे सियासतदान फिर क्या नसीहत करते हैं ऐसी सूरत हाल के बाद। क्या बात है सर, दाद देनी पड़ेगी। क्या आपने पाकिस्तान में कभी किसी फाहते रहनुमा को, कभी किसी दीगर जलसे जुलूस के हंगाम किसी रहनुमा को ये सब कहते आपने सुना या देखा है? वो कहते हैं सलाम दुआ को अहमियत दो,
चेहरे पर मुस्कुराहट रखो, जी चला कर मत बोलो, आजी रखो, इल्मी मजलिस में शिरकत करो, जाहिल और बुरे हमसाए से दूर रहो, गलत बात से दूर रहो, फराख दिल बनो, शफकत वाला रवैया रखो। जो कुछ कह रहे हैं सारी जो वो हदायत हैं जो अहादीस नबवी में मौजूद हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमने अपने साथ वो सलूक कर रहे हैं हम जो दुश्मन भी हमारे साथ नहीं कर सका। और जो लोग जीतते हैं वो हारने वालों को खाने के दर पे होते हैं, जो हारते हैं वो जीतने वालों को तस्लीम करने को तैयार नहीं होते, तबारा करते हैं। तबर्रा करते हैं। ये देखिए, हमें कोई एक सवाल है सर, हमारे तमाम जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं, मजहबियों के बिलखुसूस, लेकिन सियासी जमातों के भी, ये अपनी मजालिस में, जलसे जुलूस में या ख़िताब के दौरान दीन इस्लाम, अहादीस, सीरत तय्यबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका बड़ा हवाला देते हैं अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन क्या ये जुमले भी सिखाते हैं? नहीं, ये अभी तो जो हमारी मजहबी जमातें हैं ना, उनके रहनुमाओं की तकरीर असल है। जी हाँ, उसमें भी ऐसी उसमें क्या होता है, तो इसलिए फतवे हैं उसमें। फिर तैयब उर्दवान ने फिर 20 साल से ज़्यादा हो गया लीड कर रहे हैं ना कौम को, और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। और हम जो हैं अपने गले काट के, अपने खिलाफ जिद्दोजहद करके, अपने आप को बर्बाद करके आज किस हाल में हैं, और अपने कैंपेन चला रहे हैं अपने खिलाफ। और आपको पता है सर, झूठ। तैयब उर्दवान साहब ने जब फतह के बाद ये खिताब शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले कहा, ये फतह मेरी, ये किसी और की शिकस्त नहीं है, ये तुर्की की आवाम की है। पूरी उन्होंने कौम की है, किसी पता है। अपने ओपोनेंट को लताड़ा नहीं। देखिए, जब आप फतह हासिल कर लेते हैं तो आप सबके लीडर होते हैं, हाँ, सबके वजीर आजम हैं, सबके सदर हैं। और अभी यहाँ तो ये है, आप देखिए, ये आज हम निगरान वजीर आला जो है मोहसिन नकवी, उनसे मिले। हाँ जी, APNS का आपका डेलीगेशन वफ्द जो मिला। हाँ। अब मैंने उनसे सवाल किया, मालूम हुआ 11 ख्वातीन कैद हैं पूरे पंजाब में, 8 लाहौर में हैं और 2 रावलपिंडी में हैं और 1 मुल्तान में। सही। और उसके बाद जो उन्होंने तफसील बयान की, हमने झूठी तस्वीरें लगा लगा के, पुरानी, कहीं कश्मीर की, कहीं कहाँ की, एक हंगामा बर्पा कर दिया है कि ख्वातीन की बेहुरमती हो रही है। और हमें शर्म नहीं आती अपने आप पर, कोई तो हद होनी चाहिए। हद होनी चाहिए, लेकिन क्या कीजिए, आज जब 2 ख़वातीन को शनाख्त परेड के लिए पेश किया जा रहा था, विजुअल्स पूरी दुनिया देखे, तो वो शॉपर चेहरे पे चढ़ाया हुआ था उनके, नीले रंग का। तो शॉपर तो चाहेगा ना कि देखे ना कोई उनकी शख्सियत। कोई बंदा, कोई चादर, कोई चादर और दे दे। दीगर एहतमाम कर सकता है। ये जो सौदा सलफ लाने के लिए शॉपर है, उसमें सुराख करके, ये तो मतलब अजीब बात है। मुझे ये समझ नहीं, क्या पंजाब पुलिस के पास अगर पर्दा ही मकसूद था, ये शनाख्त को ज़ाहिर नहीं करना था, तो जैसा मास्क साथ आप देखें ना सर, नहीं, साथ जो पुलिस एहलकार ख़वातीन है मुअज़्ज़ज़, उन्होंने भी मास्क पहन रखा है, आप उनको फराहम कर देते। ये शॉपर चढ़ाकर, आपकी बात ठीक है कि फेक न्यूज़ जो मतलब है हम इतना उसका तो झूठ बोल तसव्वुर रहे है, हैं। लेकिन ये पहलू भी है, इसका क्या कीजिएगा, इसका जवाब भी देना हमने होगा। उनसे कहा, फिर उन्होंने कहा जी अब हमने ये किया है कि अगर पुलिस जब किसी के घर में जाएगी, उसकी वीडियो बनेगी, खुद पुलिस बनाएगी। बना लें सर, अच्छा है। मैं अव्वल तो नौबत ही नहीं आनी चाहिए किसी के घर जाने की, बहरहाल सर, किसी को धमकाने आज खान साहब पेश नहीं हुए, और ऑडियो लीक सबमिशन का मैंने जिक्र किया था, हुकूमत ने तो कर दिया उस पर एतराज़। असल में देखें, और ख्वाजा साहब ने मिसाल दी है कि इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने बेटे केस में खुद को अलग किया था। देखिए ख्वाजा साहब जो भी मिसाल दें, और कोई भी इदारा पार्लियामान को डिक्टेट नहीं कर सकता। नहीं, पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकता, और पार्लियामेंट भी किसी को डिक्टेट नहीं कर सकती। लेकिन आप ये देख लें कि पार्लियामेंट के कवानीन पर नज़रसानी का इख्तियार जुडिशरी के पास होता है। जी हाँ, और जब आप आइन ने किसी, दिया है। हमारी जो रवायत है ना, अदालती रवायत यह है, जब किसी जज पर आप एतराज़ करते हैं तो उसके बाद उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि वो अलहदा होता है कि या वो नहीं। अलहदा होता है या नहीं। अमूमन क्या मामूल था, हो जाते थे अलग, जब चाहें तो अलग हो जाते हैं। मौलवी मुश्ताक हुसैन साहब नहीं अलग हुए, नहीं हुए थे, भुट्टो साहब के मुकदमे से। नहीं हुए थे। उन्होंने कहा नहीं, जज जो है कहता नहीं मुझे उम्मीद है मैं इंसाफ करूंगा। तो आप किसी जज को मजबूर नहीं कर सकते। इंडियन एक रियासत में एक जज थे, उनकी बच्ची जो है नहीं, वो बन गई सरकारी अफसर। वकील, हाँ जी, वकील बन गई। हाँ, तो उन्होंने उस रियासत से अपना तबादला करवा लिया। उन्होंने कहा कि मुझे किसी दूसरी रियासत में भेज दिया जाए, ये मेरी बच्ची है, ये बच्चा है, वो यहाँ वकालत करेगा। एक ब्रेक नाज़रीन।
یہ جو دیکھیں نا ایک بریک چھوڑی اخلاق ہے، ضابطہ ہے جو اپنے اوپر خود نافذ کرتے ہیں. ایک بریک ناظرین، کیونکہ ضابطہ کہہ رہا ہے بریک لے لو. اب ہیں سر جناب آصف علی زرداری صاحب، سابق صدر، کچھ دنوں کے لیے بیرون ملک تھے، آج لاہور پہنچے ہیں اور لاہور پہنچنے کے بعد ظاہری بات ہے یہاں بیٹھک لگائیں گے. سیاست کے بادشاہ ہیں اور چودھری شجاع صاحب اور دیگر جو ان کے احباب ہیں، سیاسی دوست، ان سے میل ملاقاتیں کریں گے اور کئی سیاسی رہنما ان سے ملیں گے، کیونکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پنجاب میں جو کھچڑی پک رہی ہے، چاہے وہ نئی جماعت کے نام پہ ہو، چاہے قاف لیگ ہو، جہانگیر ترین صاحب ہوں یا مستقبل کی سیاست ہو، اس کی کایا پلٹ جو ہے یا نوک پلک درست کرنے کے لیے چلیے زرداری صاحب کے فارمولے جو ہیں وہ زرداری لوگ صاحب کا سنیں اپنا گے. شہر ہے لاہور اور جی آیا نو جم جم بیٹھن آن اپنے جوہر دکھان. مگر اصل بات یہ ہے جلد سمیع ملاقات سمیع ابراہیم کا آج جی سمیع ابراہیم صاحب واپس کل آ گئے ہیں. واپس کل آ گئے. ہاں جی، اور گھر میں ہیں، پہلے تو ہاسپٹل میں تھے تو ان کی خیریت دریافت کر رہے ہیں لوگ. اور لیکن عمران ان ریاض کا کچھ پتہ نہیں چلا. ان کا کچھ پتہ نہیں چلا. ہم نے آج محسن نقوی صاحب سے بھی پوچھا، وہ بھی کوئی جواب دینے سے قاصر تھے. عمران ریاض کا بھی معلوم ہونا چاہیے، انہیں بھی واپس آنا چاہیے. سمیع ابراہیم کو اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے. ہمیں ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں اور ہمیں ان کی جان اور ان کی عزت، ان کا وقار بہت عزیز ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوا جاتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.